बूढ़े लोग हैं ना पेट के. Good evening, everybody. I'm happy that in the midst of so many lathi charges, golibars, we still have time to talk about art and freedom. And we have the best person who can talk on this subject, Mr. Ashok Vajpayee. For most of us, he needs no introduction. Maybe there are some students who don't know enough about him, so it's a formality. I'll try to introduce him briefly, though it's difficult to introduce him briefly because his list of achievements is very long. I've had he says cut it short. Huh? I'm fortunate enough to have known him for the last nearly 30 years, since his Bharat Bhavan days. And Bharat Bhavan was entirely his creation. It was one of the greatest experiments in modern Indian cultural history. Bharat Bhavan became, Anand Murthy used to say in those days, Bhopal has become the cultural capital of India. Because all artists, painters, poets would meet in Bharat Bhavan and become the meeting point. But because of some unfortunate political developments, this dream was disrupted. And Ashok ji came to Delhi and he has served in many capacities. He has been the first Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Hindi University and Chairman of the Lincoln Academy, and he's occupied many important, is Joint Secretary Culture, has occupied many important positions, and wherever he was, he's attracted a lot of controversy. I remember when he was in Bharat Bhavan, he was being attacked both by the right and the left. But he has always defended the autonomy of art and culture. At the same time, he has not been blind to the forces of intolerance in society. And he always raised his voice against the forces of intolerance, and because he knows that for the autonomy of art and culture, we need to defend democracy. And of late he has been in the news because he was one of the first writers to return Sahitya Akademi Awards, and one of those who were branded as Naxalites. And then he was asked, why did you return it in 1984? He said, I didn't get it. I didn't got it in 1984. And then he returned some DLIT conferred on him by Central University of Hyderabad after atrocities were reported against Dalits. So he has been the voice of the conscience of the cultural community in the country. And most important of all, apart from his literary achievements, he's a remarkable poet. And among all these engagements, I think he's monogamously wedded to poetry, because he's been writing consistently good poetry over years. His uniqueness, I'd like to sum up in a few words. Poets have imagination and no power. And bureaucrats have a lot of power and no imagination. And Ashok ji happened to be the poet and bureaucrat all in one. There are a lot of good poets who have been writing wonderful poetry in modern India, and there have been a lot of bureaucrats who also wrote poetry and used their bureaucratic powers only to promote their own poetry. Whereas Ashok ji has nurtured and promoted the culture of poetry. He has struggled very hard to keep poetry alive in the contemporary world. Otherwise, but for the motherly way in which he took care of poetry, many poets in different parts of the world would have just disappeared, because he would seek out good poets wherever they were. Poets are not very good in promoting themselves. They were in remote corners,
there was this famous Hindi poet from Madhya Pradesh, Vinod Kumar Shukla. He would never take telephone calls and he would never reply to letters. But he sought him out and established him in the mainstream of Indian poetry. So he has done a great service to the culture of poetry in India. And as he had that bureaucratic imagination, we can call that. And so his contribution, he has also been a wonderful music critic and has been closely associated with Kumar Gandharva, has written wonderful poems of Kumar Gandharva, and also he is a great promoter of art. He brought somebody like Swaminathan to Bharat Bhavan, and this Madhav Chandra alive, that maximum fantastic. You're not being brief now. Yes. So yes, because brevity is not the soul of wit. I'll cut it short here. Over to Ashok. वेल मित्रों, थोड़ी सी देर में मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ कहा गया है हो सकता है कि उसका बहुत थोड़ा हिस्सा आपको मेरे कहे सुने में नजर आए, पर आपने मुझे बुलाया है इसलिए आपको थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करना होगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे तो इन दिनों सौभाग्य से बरसों बाद युवा छात्र कुछ बहुत साहस से, कुछ दुस्साहस से बोल रहे हैं और उनकी आवाज और बात ध्यान से सुनी जा रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ। बोलते तो पहले वाले भी थे, लेकिन उनके बोलने का वो असर नहीं होता था और उस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि सत्ता उससे विचलित हो जाती है। तो जाहिर है कि ये आवाज जो युवाओं की है, इसने अपने को केंद्र में स्थापित कर लिया। उसके बावजूद अगर आप मुझ जैसे धवल केशी को बुलाते हैं तो मुझे थोड़ा संकोच भी होता है और ये भी लगता है कि मैं किस काबिल हूँ। जब ये आवाज़ इतनी ज़ोर से सुनी ही जा रही तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। पर बहरहाल मैं कुछ बुनियादी और कुछ बड़ी मोटी मोटी बातों से शुरू करना चाहता हूँ कि आखिर हम कलाओं और स्वतंत्रता की बात आज के माहौल में कर रहे हैं। वो माहौल क्या है, उसमें क्या हो रहा है? एक तो जिन चीजों को संदिग्ध बनाया जा रहा है, संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, वो है अभिव्यक्ति, वैचारिक बहुलता, ज्ञान की मुक्त रचना, आस्था, खान पान, सभी को एक तरह से संदिग्ध बनाया जा रहा है या निरी भावुकता से उसे त्रस्त करने का एक देशव्यापी अभियान चल पड़ा है। दूसरी बात यह है कि बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही अधकचरे और बौने लोग इस समय भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय अस्मिता, भारतीय मनीषा आदि की बेहद सकरी, मनमानी, तथ्यों से बेमेल दुर्व्याख्या कर रहे हैं और ये दुर्व्याख्या का अधिकार उन्हें लोकतंत्र देता है। हम सबको व्याख्या करने का भी अधिकार है और व्याख्या के साथ साथ दुर्व्याख्या करने का भी अधिकार है, लेकिन हम में से किसी को अपनी दुर्व्याख्या दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं। जबकि ये पहली बार हो रहा है कि दुर्व्याख्या रहे, बौद्धिक जगत में, सामाजिक जगत में रहे और उसको चुनौती दी जा सकती है, उससे मुठभेड़ की जा सकती है, उसका तर्क संगत प्रत्याख्यान किया जा सकता है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुर्व्याख्या अपने को सारी और व्याख्याओं के ऊपर हावी कर दे कि आपको ये मानना पड़ेगा। और मानना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपके, अगर आप ना माने तो आपके साथ शारीरिक सलूक तक हो सकता है।
तीसरी बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति, वैचारिक मतभेद, ज्ञान और भारत दोनों की अदम्य और अनिवार्य बहुलता का ऐसा असम्मान पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये ठीक था कि असहमति पहले, मुझे याद आता है मैं विधानसभा, मैं तो वहाँ शासकीय कर्मचारी था, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने के कारण, तो वहाँ 2 वामपंथी सदस्य होते थे विधायक, और कांग्रेस का बहुमत होता था। लेकिन जब ये 2 लोगों में से एक भी बोलने खड़ा होता था, और वो अक्सर कांग्रेस पर बहुत ही गहरे प्रहार करते थे, तो सारा सदन चुपचाप सुनता था, क्योंकि असहमति का सम्मान करने की आदत थी। अब तो खैर संसद ऐसे चलती है जैसे किसी पिछड़े इलाके के हाई स्कूल का वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो। मतलब पहले ऐसे लोग थे बोलने वाले कि जो जब बोलते थे तो लगता था कि इसमें कुछ तत्व है, कुछ बल है, कुछ मैंने एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मेरा परिचय था, मैं सेंट स्टीवेंस में एमए कर रहा था, तो हमारे एक मित्र थे, वो कहने लगे कि आज लोहिया जी से मिलने चलते हैं। तो मैं लोहिया जी से मिलने चला गया, तो वहाँ कुछ लोग, दूसरे लोग बैठे हुए थे, उनके नेता वेता, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं। तो उन्होंने इतनी रुखाई से उन लोगों को, उनमें से एक जाने में थोड़ा ननुनच कर रहा था, तो उससे कहा कि तुम इन बुद्धिजीवियों लेखकों के साथ बैठ के क्या करोगे, जाओ। तो बेचारा चला गया। हमको बाद में पता चला कि वो राजनारायण नाम का व्यक्ति था जो देश का स्वास्थ्य मंत्री भी हो गया। हाँ, लेकिन लोहिया जी से मैंने पूछा कि आप बार बार नेहरू के बारे में ये कहते हैं कि वो एक उनके जो बाबा थे, वो यानी मोतीलाल नेहरू के पिता, वो किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अब खुदा जाने थे कि नहीं, कि बहरहाल। तो हमने कहा ये कह के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बहुत ही मतलब अभद्र सी बात है कि आप किसी के परिवार की में, आजकल ये सब लोग यही कर रहे हैं। मुझे अब अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, मुझे तो विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन हम कवि लोग हैं, गप लगाते हैं, कोई हम व्याख्यान तो देते नहीं हैं। वो सब काम तो ये हमारे मित्र लोग जो बैठे हैं सुसंगत ढंग से पैराग्राफ 1 2 3 4 5, हमारा तो ये है कि 2 और 2 4 होना जरूरी नहीं है, 6 भी हो सकते हैं। और बहरहाल कवि होने का अर्थ क्या हुआ अगर वही गणित लगा जो आप सब लगाते हैं। तो बहरहाल तो वो जो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो लोहिया जी ने कहा कि तुमने भी पढ़ा होगा, और मैं एमए का छात्र था, एमए अंग्रेजी का, तो तुमने भी पढ़ा होगा कि मोतीलाल नेहरू के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, और जवाहरलाल के भी। और कहने लगे हालांकि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ये कहने अगर मान दो तुम्हें ये बताया जाता कि इस देश के चपरासी का बेटा प्रधानमंत्री का पोता प्रधानमंत्री है, तो उससे सोचो कि जो छोटे छोटे जगहों के लोग हैं उनका दिल कितना ऊंचा उठता। तो ये स्तर था उस समय के लोगों का सोचने का और इस तरह की बातें करने का। तो अब वो सब तो सार्वजनिक संवाद जो है वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। मैंने कई वर्षों से टेलीविजन देखना बंद कर दिया। अगर सारी खबर खराब ही खबर है तो मैं आज शाम क्यों बर्बाद करूं, कल सुबह अखबारों में पढ़ के रो लूंगा। हाँ, काहे को अपनी शाम बर्बाद करें। और कभी कभी मैं भी चला जाता हूं क्योंकि मुझे बुलाते हैं, और वो एक दूसरे पे खौखिया के दौड़ते हैं। हाँ, मतलब हद है कि किसी को कोई बोलने नहीं देता। हर एक को लगता है सार्वजनिक संवाद इतना व्यापक और इतना घटिया पहले कभी नहीं हुआ कि आप किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। अब ऐसे में जो एक और चीज हो रही है जिसका खमियाजा आप भी भुगत रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, सार्वजनिक संस्थाओं का अवमूल्यन।
और ये कोई सिर्फ शिक्षा की संस्थाओं का नहीं है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बने एक सज्जन, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना था। हालांकि मुझे ये दंभ है कि अगर मैंने ससुरे का नाम नहीं सुना तो वो कहां से आ गया। हाँ, मतलब कोई क्लर्क की नौकरी तो है नहीं कि जिसमें अज्ञात कुलशील भी आ जाए अपनी प्रतिभा के बल से। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एक राष्ट्रीय संस्था है जिसपे सीताकांत महापात्र और युआर अनंत मूर्ति जैसे विख्यात लोग उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो पता चला कि वो एक पत्रकार थे और दुर्भाग्य से वो हमारे मध्य प्रदेश में ही पत्रकार थे। अब मैं मध्य प्रदेश में 17 बरस मैंने भोपाल में गुजारे और सूचना प्रकाशन जो संचालनालय था उसका मैं मुखिया भी रहा, सचिव भी रहा, मैंने इनका नाम ही नहीं सुना था। और उनकी जो कीर्ति है वो क्या है कि उन्होंने एक संघीय नेता की जीवनी लिखी है, पुस्तक से उनका सिर्फ इतना वास्ता है। तो ये एक अभियान है जिसमें सार्वजनिक संस्थाएं, इनमें से अनेक सार्वजनिक संस्थाएं दूसरे सरकारों के ज़माने में कुछ हिम्मत रखती थी, अपनी स्वायत्तता का इजहार करती थी। अब उनको पालतू बनाने की कोशिश है और हमेशा ये होता है कि ये बौनों के अभ्युदय का युग है और बौने असंख्य अवतार ले रहे हैं। मतलब उनमें से कौन कब कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि इनकी बड़ी मुश्किल भी है कि इनके पास लोग ही नहीं है, लाएं कहां से। हम लोगों ने जब अपनी अवार्ड वापसी की तो उसके बाद 400 कलाकारों और कलाविदों ने हमारा समर्थन किया, 500 वैज्ञानिकों ने किया, 100, 150, 200 विद्वानों ने किया। हालांकि विद्वान थोड़ा पीछे रहते हैं, खुदा जाने क्यों, उनको शायद धीरज और प्रतीक्षा की आदत रहती है। तो बहरहाल लेकिन कम हुआ तो खैर। लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि इस सारे दौरान झगड़ा हमारा हो रहा था साहित्य अकादमी से। साहित्य अकादमी से किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसी वफादारी दिखाएं जैसी उन्होंने दिखाई, लेकिन वो अंग्रेजी में जो मुहावरा है मोर लॉयल देन द किंग, कि राजा कहता नहीं है लेकिन जो वो हैं। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि हम लोग मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिक्स है। तो जिस दिन कहा गया उसी दिन राष्ट्रपति ने कहा कि असहिष्णुता फैल रही है, उसी दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा कि असहिष्णुता होगी तो विकास नहीं होगा, उसी दिन नारायण मूर्ति नाम के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उन्होंने भी कहा कि असहिष्णुता है। तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिक्स थी उनके हिसाब से। तो बहरहाल तो ये जो एक माहौल बना है जिसमें एक तरह से सिविल समाज को ध्वस्त किया जा रहा है। अब ऐसी हालत हो रही है कि हम एक दूसरे पर चौकीदारी करेंगे, चौकसी करेंगे। तूने फलाने की जय बोली कि नहीं बोली, तूने ये नारा लगाया कि नहीं लगाया। जो सत्ता छोटे मोटे नारों से, या जो राष्ट्र छोटे मोटे नारों से बहुत हिलने लगे, उस राष्ट्र को अपनी देह की भी और दिमाग दोनों की कुछ चिकित्सा फौरन करानी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक नारे से आप इतना विचलित हो जाएं कि पूरी सत्ता को झोंक दें उसके विरुद्ध। तो बहरहाल चूंकि आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते ये हैं कि ये जो उभरता हुआ लोकतांत्रिक समाज है, ये एक ऐसे समाज में देर सबेर बदल जाए जिसमें ना तो जिज्ञासा बचे, न प्रश्नवाचकता बचे, ना असहमति बचे, सभी एक दूसरे की थैली के चट्टे बट्टे हो जाए। तो ये जो अभियान है इस समय, तो अब आप पूछेंगे कि ये तो आपने ठीक है किस्सा बता दिया, ये तो हमको पता ही है, पर बहरहाल इसमें साहित्य और कलाएं क्या कर सकती या क्या करती हैं। एक तो
कलाओं से मेरा मतलब सिर्फ कलाएं नहीं है, उसमें साहित्य भी शामिल है, कि कलाओं के बीच आखिर क्या और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध हो सकता है, क्या संबंध रहा है। एक तो ये कि कलाएं जन्म ही स्वतंत्रता में लेती हैं और स्वतंत्रता को ही पोषती बढ़ाती हैं, और कई बार अपनी स्वतंत्रता, वो राजनैतिक स्वतंत्रता न रहने पर भी, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उस दौरान हम तो गुलाम थे, लेकिन कौन कह सकता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या इकबाल या वल्ला तोल या प्रेमचंद या निराला या अज्ञे, ऐसे जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, वो गुलाम जहनियत के साहित्यकार नहीं थे, वो स्वतंत्र चेता साहित्यकार थे। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि असल में तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत बाद में मिली है। मैंने जब ये कितने 60-70 बरस कुछ भी होते रहते हैं ना स्वतंत्रता के, तो कुछ ना कुछ अखबार वाले मांगते हैं, तो मैंने एक निबंध लिखा था, फ्री बिफोर फ्रीडम, कि ऐसी हालत भी होती है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के पहले सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, साहित्यिक रूप से स्वतंत्र अनुभव करते। ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी स्वतंत्रता अर्जित की। अब दूसरा ये है कि राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप में अभीष्ट है, पर वो काफी नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान ने सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं की है, उसने समता की भी बात की है, उसने न्याय की भी बात की है। और मसलन जब ये निर्भय कांड हुआ था और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें निश्चय ही आप में से बहुत सारे लोग शामिल रहे होंगे, उस समय मैंने ये सवाल उठाया था कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम स्त्री पुरुष की समता को मानने को तैयार समाज हैं? क्योंकि हमारे संविधान ने तो ये प्रावधान किया है, लेकिन सामाजिक जो ढांचा है और सबसे बड़ा हमारे जो धर्म है, इस समय धर्म लोकतंत्र से पिछड़ते हुए धर्म है। और मैंने ये कहा था कि अगर किसी को किसी धर्म में स्त्री पुरुष की समता के विरुद्ध कुछ है, तो या तो उसको संशोधन कर देना चाहिए। आखिर धर्मों में वही क्यों रह आएगा जो 2000 पहले किसी ने कहा था। धर्म भी तो विकसित होते हैं, अगर मनुष्य के और अनुशासन विकसित होते हैं, साहित्य और कलाएं विकसित होती हैं, बदलती, तो धर्म शास्त्र क्यों नहीं बदलेंगे? और धर्म बदलते रहे हैं, ये भी दूसरी तरफ ये भी सही है। अगर आपके आध्यात्म में, आपके किसी ग्रंथ में, आपके किसी आचार विचार में इस समता के विरुद्ध कुछ है, तो उससे आपको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि आप निरे धर्म नहीं हैं, आप लोकतंत्र में धर्म हैं, और लोकतंत्र में कुछ बुनियादी मूल्य हैं जिनका आपको पालन करना होगा। बहरहाल, अब अगर कई बार जो स्वतंत्रता का पहला स्वर है और जो पहली आवाज है, अब तो खैर माध्यम ऐसे हो गए हैं कि आप वो आवाज उठाएं और उसी दिन क्या हो जाती है, वायरल हो जाए। हाँ, और मैं आज तक नहीं समझ पाया, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, कि वायरल तो एक वो कुछ वो होता है, पर खुदा जाने कैसे इट हैज गॉन वायरल। तो एनीवे, व्हाटएवर इट हैपेंस टू इट। तो अब तो ये है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब ये तो संभव नहीं था कि आप, तो पहली आवाजें स्वतंत्रता की साहित्य और कलाओं में उठी थी। साहित्य और कलाओं में ही, और ये कोई भारत के बारे में सही नहीं है, ये अनेक देशों और समाजों के बारे में सही है। यही नहीं कि वहां स्वतंत्रता की आवाजें पहले उठी थी, बल्कि ये कि स्वतंत्रता की चौकसी करने का काम भी और उसको बढ़ाने पोसने का काम भी साहित्य और कलाओं ने किया था। ऐसे समाज रहे हैं, मसलन और जगह भी रहे हैं, जहां
तानाशाही, जहां बहुत सारी बंदिशें हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उन तानाशाहियों के चलते साहित्य और कलाओं ने अपनी स्वतंत्रता का इजहार करने का कि कई तरीके खोजे, पाए। कुछ अंतः सलिल थे, कुछ स्पष्ट थे, कुछ भूमिस्थ थे, कुछ दबे छुपे होते थे, पर होते थे। और अंततः उनमें से कई समाजों में उन्हीं कवियों, लेखकों को बड़ा माना गया जिन्होंने तानाशाही के जमाने में प्रतिरोध करने की और स्वतंत्रता को बचाए रखने की दुस्साहसिकता की थी। अब ये आप कह सकते हैं कि भारत में भी देखिए, हमारे दो वामपंथी, ज्यादातर वामपंथी संस्थाएं थी, एक इप्टा और एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन। ये सब स्वतंत्रता के पहले बने थे और ये सब, इन्होंने सब ने स्वतंत्रता की जो बुनियादी शर्त है एक समाज के लिए, उस पर आग्रह किया था। इप्टा ने भी किया था और इसमें बहुत सारी कलाओं के लोग शामिल थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था जिसमें हुसैन, सूजा, रजा इत्यादि सब थे। उन्होंने भी ये इसी अपनी स्वतंत्रता का इजहार किया था। और कई बार हम इसको भूल जाते हैं कि हम शास्त्रीय कलाओं को, मसलन शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत को कुछ इस तरह से देखते हैं कि ये बड़े पिछड़े हुए से हैं और इनमें कोई राजनीतिक चेतना इत्यादि की तलाश करना बेकार है। अगर आप ध्यान दें कि औपनिवेशिक मानसिकता का बहुत गहरा प्रभाव हमारे साहित्य और बहुत सारी कलाओं पर पड़ा, साहित्य पर पड़ा, रंगमंच पर पड़ा, ललित कलाओं पर पड़ा, पर वो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य पर नहीं पड़ा। वो अपने को वैसा ही चलाए रखे। तो ये औपनिवेशिक जहनियत का प्रतिरोध क्यों नहीं है? तो हमारे यहां भी कलाओं की जो भूमिका रही है वो अलग अलग किस्म की भूमिका है, वो सब एक ही तरह की भूमिका नहीं रही। बहरहाल, अब अगर हम इस पर जाएं कि आखिर ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि अंधेरा बढ़ रहा है, कि अंधेरा घिर रहा है, कि हम वैसे तो अभी आ गया है शायद जो अंधेरा घिर रहा है, लेकिन ज्यादा लगता है कि अंधेरा घिर रहा है और हम कई बार ठीक से इस अंधेरे को पहचान नहीं पाते। हमारे समय में अंधेरे ने एक नई हिकमत, या रोशनी ने या चकाचौंध ने एक नई हिकमत निकाली है कि वो चकाचौंध जो है वो अंधेरे को छुपाती रहती है। अब साहित्य और कलाओं का एक काम ऐसे वक्त में उस अंधेरे की ओर बार बार आपको ले जाना है जो दरअसल इस चकाचौंध और उजाले के पीछे छुपा हुआ है और जो सच्चाई का शायद ज्यादा बड़ा हिस्सा है, बजाय उस चकाचौंध के जिसमें आप बहुत अपने को चकित और मुग्ध और जाने क्या क्या अनुभव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं कई बार ये कहता रहा हूं कि साहित्य और कलाएं मनुष्य का स्थायी लोकतंत्र है और इसका राजनीतिक लोकतंत्र से होने न होने से कोई संबंध नहीं, क्योंकि साहित्य और कलाओं में इस बात का बहुत विचार अब नहीं होता या होता आया है कि आप इस धर्म के हैं कि उस धर्म के हैं, कि आप इस लिंग के हैं कि उस लिंग के हैं, कि इस क्षेत्र के हैं कि उस क्षेत्र के हैं। हर एक ने अपने अपने ढंग से अपनी परंपरा में, उदार तबकों का भी है, उन्होंने सोचा कि भारतीय परंपरा तो बहुत ही रूढ़िवादी परंपरा है तो उसको छोड़ो, और छोड़ने से उन्होंने हथिया ली। हमको उस परंपरा के कुछ मौलिक तत्वों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिनमें से एक ये है कि ये बहुत ही प्रश्नवाचक परंपरा थी। ये हमेशा प्रश्न पूछती थी
वेद से लेकर 20वीं 21वीं सदी तक इस परंपरा ने प्रश्न पूछे और उनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विचलित करने वाले प्रश्न हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नासदी सूक्त में ऋषि कहता है कि ये जो पहले तो सृष्टि की वंदना करता है और फिर कहता है कि लेकिन जब ना अंधेरा था ना उजाला, न उपस्थिति थी ना अनुपस्थिति, न था न था, हाँ, तब क्या था? तो पहले तो जो रटा रटाया उत्तर है लगभग वो देता है कि हो सकता है उसको पता हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। फिर रुकता है और फिर कहता है हो सकता है उसको भी पता ना हो। इसी वेद की के एक व्याख्याकार थे, कौंत्य नाम के ऋषि थे। उन्होंने उस समय वेद तो लिखे नहीं जाते थे, वो तो मौखिक परंपरा में थे, अपौरुषेय थे, इसलिए उनका लिखना वर्जित था। लेकिन उसकी व्याख्या में ये कहा जाता था कि आप इसमें कुछ बदल नहीं सकते, ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। तो कौंत्य ने कहा कि अगर वेद में जो कुछ कहा गया है वो किसी और तरह से नहीं कहा जा सकता तो इसका मतलब है कि वेद निरर्थक है। अब ये तो बहुत ही, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ब्लास्फेमी। आप ये कह रहे हैं कि वेद निरर्थक है। लेकिन एक यास्क नाम का ऋषि था, उसने एक निरुक्त नाम का ग्रंथ संकलित किया जिसमें वेद की तरह तरह की व्याख्याएं संग्रहित हैं। उसमें कौंत्य की व्याख्या को भी शामिल किया, यद्यपि वो एक अर्थ में वेद विरोधी थी। तो हम अपनी परंपरा के इस पक्ष को न भूलें कि इस परंपरा ने वेद से लेकर उपनिषदों के माध्यम से, महाकाव्यों के माध्यम से और बाकी बहुत सारे दर्शनों के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं। कभी हमारा ध्यान ही इसमें नहीं जाता कि भारतीय परंपरा में और भारतीय जीवन में एक वचन कुछ भी नहीं है। न तो ईश्वर, न धर्म, न भाषा, न रीति रिवाज, न आचार विचार, एक वचन कुछ भी नहीं है। भारत में तो किसी को एक वचन रहने ही नहीं दिया गया, हर एक को बहुवचन में बदल दिया। ईश्वर को पहले एक था, फिर 3, फिर 33 करोड़ देवता हो गए। तो हमारी तो जनसंख्या ही 33 करोड़ न रही होगी जब हमारी देव संख्या हमारी जनसंख्या से अधिक थी, वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ इतनी भाषाएं, इस बहुलता पर आप जो ही किसी तरह की एकात्मकता लादने की कोशिश करेंगे, हमको ये पहचान सकना चाहिए कि ये भारत विरोधी है। असल भारत द्रोह तो ये है। भारत द्रोह है जब आप बहुलता से इनकार करें, ये कहें कि नहीं ये तो एक ही। हमारे मित्र अनंत मूर्ति कहते थे कि भारत में एक विचित्रता है, अगर आप विविधता या बहुलता पे जोर देंगे तो आप एकता पर पहुंच जाएंगे, अगर आप एकता पे जोर देंगे तो आप बहुलता पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारा, मैं कई बार ये कहता रहा हूं कि वी आर वन बिकॉज वी आर सो मेनी। अब आप कहेंगे ये तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिक से थोड़ी चलती दुनिया, ये सब लॉजिक से हो रहा है जो हो रहा है। और अगर इस ये लॉजिक है तो इट इज सच अ बैड इविल लॉजिक। तो भारत फिर अगर ये सब बहुवचन है और इतनी तरह से बहुवचन है, ईश्वर, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, कौन सा खाना भारतीय है? कोई एक खाना भारतीय नहीं है। छोले भी भारतीय हैं और डोसा भी भारतीय है और फलाना भी भारतीय है, टिकाना भी भारतीय है। कौन सा पहरावा भारतीय है? साड़ियां भी भारतीय हैं और सलवार कमीज भी भारतीय हैं और गरारे भी भारतीय हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कोई क्षेत्र ही ऐसा नहीं है जिसमें आप एक वचन को मान सके। इसलिए अब हमने 2 तरह के झूठ हमारे यहां पनपते रहे। एक तो झूठ है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है,
तो चमक दमक रहा है, और कोई ना कोई आंकड़ा तो ऐसा मिल ही जाता है जो जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हाँ ये बहुत ही, अभी तो विचारों ने खुद अपने आकलन से मुंह की खाई है। जिस विश्वविद्यालय पर उन्होंने इतना हमला किया, वही विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में साबित हुआ, आप ही के मंत्रालय ने सिद्ध किया। पर जैसा मीर ने कहा है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सरकारों को कुछ तो बेशर्मी से काम लेना पड़ता है, जैसा कि किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में थोड़ी बेशर्मी आवश्यक है। साहित्यकार होने के लिए भी बेशर्मी आवश्यक है, विद्वान होने के लिए भी बेशर्मी थोड़ी जरूरी है, और छात्र होने के लिए भी थोड़ी बेशर्मी जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सच्चाई की पहचान, और उस समय उस सच को कहना जब उस सच को कहना जोखिम में डालना हो। और किससे सच कहना? हमको सच, मैं साहित्यकारों और कलाकारों के बारे में ये कहता रहा हूं कि हम लोग अध सचिए हैं। हमारे पास आधा सच होता है, वो पूरा तब होता है जब रसिक, पाठक, देखने वाले उसमें थोड़ा सा अपना सच मिलाएंगे। इसीलिए एक ही रचना की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हर एक का सच अलग अलग होगा। और ये जो विविधता है, ये जो बहुलता है, ये जो अपनी सीमा को भी स्वीकार करना है, हम सच कहते हैं, कम से कम कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने सच पर संदेह भी करते हैं। हमको किसने सच की कोई मौरूसी हक तो हमको किसी ने नहीं दे दिया है कि सच आप ही के पास आएगा, लेकिन राजनेता या अभिनेता या शायद खिलाड़ी भी ये कभी अपने सच पर संदेह नहीं करते। मतलब मोदी जी वगैरह को तो कभी कोई संदेह व्याप्ता ही नहीं होगा। उनकी तो इससे अधिक सार्वजनिक व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं हमारे इतिहास में, जिसकी कोई आंतरिक जीवन ही नहीं नजर आता। सारा कुछ जाहिर है, आपके सामने है या आपके सामने बन रहा है, अक्सर बिगड़ रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये जो स्थिति बनती है, उसमें झूठ बोलना और लगातार झूठ बोलना लगभग एक आदत बन जाता है, और उसमें सच अल्पसंख्यक होता जाता है, क्योंकि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन है इस समय झूठ नहीं बोल रहा? आप मेरे व्याख्यान के बाद ये भी कह सकते हैं कि आप भी वही कर रहे थे। लेकिन मेरे व्याख्यान के बाद कहिएगा, पहले ना कहिए। तो अभी तक मेरा मनोबल गिरा नहीं, थोड़ा तो बना रहे। झूठ बोलने की आदत अगर इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति कहता है ये तो प्रेस ने, ये मीडिया ने, ये फलाने ने मिस रिपोर्ट किया है। जब आप अपने किसी वक्तव्य या कथन के कारण मुश्किल में फंसते हैं तो इसका दोष आप मीडिया को देते हैं। पर हमारा मीडिया भी अद्भुत है। हम लोगों ने जब ये पुरस्कार वापसी करके अपना विरोध प्रकट किया तो उन्होंने इसके पीछे कुछ राजनीति खोजने की कोशिश की। एक मंत्री ने तो कहा ही कि मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिक्स है, किसी और ने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, जाने कौन पार्टी है, जो भी है, वामपंथी लोग हैं। अब राजनेता हर चीज में राजनीति खोजें, ये तो सही है और ठीक ही है, स्वाभाविक है। लेकिन मीडिया हर चीज में राजनीति खोजे, वो मानने को तैयार नहीं है कि लेखक कलाकारों की अपनी राजनीति भी हो सकती है। किसी ने कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा राजनीति हर क्षेत्र में घुस रही है, वो धर्म में घुस रही है, खान पान में घुस रही है, पहरावे में घुस रही है, शिक्षा संस्थाओं में घुस रही है। तो हम थोड़ी घुसपैठ नहीं कर सकते राजनीति में? हमको भी उतना ही हक है। और हम घुसपैठ किस के लिए कर रहे हैं? कोई अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। फिर कहा गया कि ये तो 15-15 लाख रुपए उनको दिए गए हैं। तो हमने पूछा अपने बैंक वाले से कि क्या हमारे खाते में 15 लाख रुपए एक दिन गुपचुप जमा कर दिए गए हैं? उस लोकतंत्र की निंदा होनी चाहिए जिस लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों की बात सुनने की ताब न बचे।
भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे और दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों गए उनसे पूछने के राजधर्म क्या है। तो भीष्म पितामह ने दो बातें कही। एक कहा कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों का आदर करे, पहला कर्तव्य ये। दूसरा ये है कि लोभियों और मूर्खों को राजकाज में शामिल न करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह ने कहा है, महाभारत में कहा है। फिर तुलसीदास ने राम से कहलवाया है रामचरितमानस में, वो नागरिकों को संबोधित करते हैं। अयोध्या में वो लौट आए हैं, लंका विजय हो चुकी है, उनका राज्य स्थापित हो गया। अब वो नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे भाइयों तुमको लगे कि मैं अनीति कर रहा हूं तो मुझे बिना डर के बरजना। ये राम कह रहे हैं, तुलसीदास के राम कह रहे हैं। तो हम अपनी परंपरा से ऐसे बहुत सारे तत्व खोज सकते हैं जो हमारे प्रतिरोध के काम आते हैं, और हमने दुर्भाग्य से वो करना बंद कर रखा है, क्योंकि हमने परंपरा इत्यादि को उनके मत्थे सौंप रखा है जिनको परंपरा की अख समझ नहीं है। पर बहरहाल साहित्य और कलाओं का एक काम इस परंपरा का आपके लिए पुनराविष्कार करना है। वो पुनराविष्कार तरह तरह से होता है, उसके कई तरीके होंगे, कई उसके रूप होंगे। बड़ा दिलचस्प है कि जब हम लोगों ने ये विरोध प्रकट किया, प्रतिरोध इत्यादि किया, तो हमारे विरोध में भारत का कोई बड़ा लेखक नहीं आया। छोट भैया आए जिन्होंने कहा कि जूते मारो सालों को। ये नारे थे जो माननीय अनुपम खेर के नेतृत्व में गए जुलूस में लगाए गए। तो ऐसे तो ठीक है, आप गाली दे दें, वो अलग बात है। हमारे अध्यापक होते थे, वो कहते थे, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी आंसर्ड बाय आर्ग्यूमेंट। As far kicking is concerned, even a she-ass can kick. तो बहरहाल, लेकिन ये जो स्थिति बनती है, इसमें कई बार लगता है कि आखिर उम्मीद कहाँ है, हम बचेंगे कैसे इस सब से। तो बचेंगे हम 3-4 चीजों से। एक तो हम अपनी परंपरा को खंगालें, उसको इन पर न छोड़ें, इनसे सार्वजनिक शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार रहें कि आइए हम आपको ये बताते हैं, आप बताइए इसके विरुद्ध कहाँ ये कहा गया है। एक, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े से बड़े विचार को तब तक सार्वजनिक मान्यता नहीं मिलती थी जब तक एक खुले शास्त्रार्थ में उसने अपने को सिद्ध न कर दिया। शंकराचार्य को ये करना पड़ा, औरों को ये करना पड़ा। तो ये जो खुला शास्त्र, किस समाज में शास्त्रार्थ की उतनी बड़ी परंपरा थी जितनी भारतीय समाज में थी। एक दूसरी बात यह है कि फिर भी उम्मीद कहां होगी। अव्वल तो सबसे अधिक वो हमारी हिम्मत में होगी, हिम्मत और जोखिम में होगी, क्योंकि उम्मीद के लिए अब कोई दूसरा घर नहीं बचा। तीसरा, हमको कुछ बुनियादी मूल्यों के लिए एक बड़ा सार्वजनिक अभियान शुरू करना चाहिए जो राजनीति से स्वतंत्र लोक नीति को प्रस्तावित करे। हम ये कहें मसलन कि स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये जो 3 बुनियादी मूल्य हैं, ये साहित्य कलाओं के भी मूल्य हैं, ये हमारे संविधान के भी मूल्य हैं, ये हमारी परंपरा से भी इनको हम सत्यापित कर सकते हैं। इन मूल्यों से आधार पर हम सबको जांचेंगे, अपने को भी और उनको भी, कि क्या वो हमारी स्वतंत्रता बढ़ाते हैं, क्या वो हमारी परिस्थिति में समता आगे ले जाते हैं, क्या वो हमको
न्याय दिलवाने की कोशिश को मच्छर को अंदर भी घुस जाते हैं। क्या किया जाए, जैसे उम्मीद को जगह नहीं मिलती वैसे मच्छर को भी नहीं मिलती। क्या किया जाए? तो ये जो ढांचा बन गया है, और मुझे तो अब ये लगता है, और मैं खुलेआम स्वीकार करने को तैयार हूं, कि मैं भारतीय युवाओं से पिछले कई वर्षों से बहुत निराश रहा हूं। मुझे लगता था कि ये बहुत ही अनुकरण करता हो चुके हैं, ये सब नकल करते रहते हैं, चिकने चुपड़े भले हों, इनमें कोई हिम्मत और कोई विकल्प की संभावना नहीं बची है। साहित्य और कलाओं का जो बुनियादी मूल्य है वो है विकल्प की संभावना। जो दी हुई दुनिया है उससे अलग कोई दुनिया संभव है, ये सोचने का मादा, ये सोचने की शक्ति साहित्य और कलाएं ही देती हैं। योसा, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसने अपने नोबेल भाषण में कहा कि जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया जैसी दी गई है वैसी ही ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं। दुनिया खराब बनाई गई है और इससे बेहतर और इससे अलग बनाई जा सकती थी और अलग और बेहतर बनाई जा सकती है। तो ये अगर विकल्प बचा रहे, अगर विकल्प की साहसिकता बची रहे और अपनी आवाज पर संदेह भी करने की ताब बची रहे कि हम ही सच, अगर वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं या सच पर उनकी बपौती नहीं है तो हमारी भी कैसे है, अगर ये बचा रहे तो उम्मीद बनती है। और उम्मीद इस समय मुझे दो ही जगह से नजर आती है। एक, ये जो युवा आंदोलित हुए हैं, इन युवाओं ने एक नई राह खोली है उम्मीद की। उसमें बहुत जोखिम होंगे, उसमें बहुत कांटे और दुनिया भर के कीचड़ और पत्थर और जाने क्या क्या होगा, लेकिन अगर वो किसी तरह से एक व्यापक आंदोलन बन सके, जैसा कि वो बनता दिख रहा है सौभाग्य से, अगर वो बन सके तो हम भारतीय ज्ञान की प्रश्नवाचकता, भारतीय ज्ञान की बुनियादी जिज्ञासा, इस सब का पुनर्वास कर सकेंगे और झूठ को झूठ की तरह दिखा सकेंगे। अगर सच बोलना अकेले, हम लोग अकेले पढ़ने से बहुत घबराते हैं। हर एक को भजन कीर्तन मंडली चाहिए, क्योंकि जब तक 10, 15, 20, 25 लोग साथ ना हो तो आप काहे के। और दुनिया मित्रों, दो ही तरह के लोगों ने बदली है। एक उन्होंने जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जो कभी सच होने के नजदीक था ही नहीं, लेकिन उस सपने से उन्होंने अपने को दूर नहीं किया। और दूसरा, वो लोग जो अकेले पढ़ने से घबराए नहीं। मैं दो नाम लूंगा, ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। मार्क्स, उसने एक ऐसा सपना देखा, उसकी क्या दुर्गति हुई अलग जाने दीजिए, पर उसने सपना देखने की ताब थी। एक इस दुनिया से बेहतर एक शोषण मुक्त दुनिया बनाने का सपना एक महान सपना है। वो अकेला था, उसका एक ही दोस्त था, वो एंजल, बस उसकी कोई भजन कीर्तन मंडली नहीं थी। और दूसरा महात्मा गांधी। गांधी जब स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था दिल्ली में, तब गांधी दिल्ली में नहीं थे। मेरे मित्र पूर्णानंद जरूर बताया होगा उनके अंतिम दिनों में गांधी क्या कर रहे थे। वो अकेले पढ़ने से घबराते नहीं थे। हमको जन आंदोलन तो चाहिए, लेकिन अकेले पढ़ने की हिम्मत भी चाहिए। हम अकेले पढ़ेंगे। और साहित्य कलाओं का एक बुनियादी सबक ये है कि तुम अपनी स्वतंत्रता बचा सकते हो अगर तुम जो करते हो
वो तुम्हारे अलावा दूसरों के भी काम का हो। एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरे तुम्हारे साथ नहीं हैं लेकिन तुम्हें अपने सच पर भरोसा है तो अकेले चलने से घबराओ मत। देर सबेर, हालांकि इस समय ये कहना बहुत कठिन है क्योंकि झूठ इस कदर जीतता है और इतना व्यापक है कि ये कहना कि सच जीत जाएगा, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और साहित्य और कलाओं का एक बुनियादी सबक भी ये है कि आदमी को ही मयस्सर नहीं इंसा होना, ये कहा था गालिब ने, लेकिन गालिब की सारी शायरी जो है वो इस बात का प्रमाण है कि हम कठिन से कठिन और विरोधी सी विरोधी और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आदमी बने रह सकते हैं, मनुष्य बने रह सकते हैं। और मनुष्य होने का अर्थ क्या है? मनुष्य होने का अर्थ हम पा नहीं सकते जब तक हम दूसरों का एहतराम न करें, जब तक हम ये न माने कि हम हैं क्योंकि दूसरे हैं। आप अपनी जिंदगी में देखिए कितना थोड़ा सा है जो आप खुद कर सकते हैं, कितना ज्यादा है जो दूसरों के किए आपको मिलता है। तो ये जो दूसरे हैं, दुनिया की समस्या क्या है कि दूसरों का क्या करें। तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दूसरों को नष्ट कर दो, उनको हटा दो, उनको पाकिस्तान भेज दो, उनको फलाने खाई में डुबा दो। ये साहित्य और कलाएं इसका प्रतिरोध करने वाली कलाएं हैं। वो आपको ये बताती हैं कि दूसरे हैं और दूसरों को भी सच कहने और देखने का अधिकार है। आखिर समझ करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कब खत्म करना है। मैं बातूनी आदमी हूं और आपके चेहरे से अभी ऊब प्रकट नहीं हुई है, तो अगर आप थोड़ी सी ऊब दिखा दें तो मैं बंद कर दूं। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्य और कलाओं ने हमेशा दी हुई नैतिक व्यवस्था, दी हुई राजनैतिक व्यवस्था, दी हुई सामाजिक व्यवस्था, इन पर प्रश्न उठाए। ये प्रश्नवाचकता साहित्य और कलाओं को हमारे काम का बनाती है। सही प्रश्न पूछना भी जरूरी है। सिर्फ ये प्रश्न, और वो बड़े प्रश्न हैं, ऐसा छोटे मोटे प्रश्न नहीं है। हमारी दुनिया में इस समय जो हिंसा है, जो आक्रामकता है, एक दूसरे से लोग इतनी, दिल्ली में कुछ ज्यादा ही है और जगह तो थोड़ी कम है, दूसरी जगह लोग इतने अभद्र नहीं है जितने दिल्ली में है, लेकिन है, राजनीति है, राजधानी है, तो इनको अभद्रता का भी एक मतलब परम अधिकार मिला हुआ है। नियम उल्लंघन करने की का जितना उत्साह दिल्ली में है कि कोई रोशनी हमको रोक नहीं सकती, और खासकर दोपहियों को तो बिल्कुल ही नहीं रोक सकती। तो बहरहाल ये इस सब के बरक्स साहित्य और कलाएं आपको सिर्फ ये आश्वासन दे सकती हैं कि सच बचा रह सकता है। दूसरा कि उम्मीद भी बची रह सकती है अगर आप सपने देखना बंद न करें। और तीसरा ये कि ये दुनिया एकमात्र दुनिया नहीं है, एकमात्र संभव दुनिया नहीं है, दूसरी दुनिया संभव है। और चौथा ये कि हमको अपने पर अपना आत्मालोचन भी उतने ही तीखेपन से कर सकना चाहिए जितनी आलोचना हम दूसरों की मुखर ढंग से करते हैं। और पांचवा ये कि हमें ये हुनर आना चाहिए कि कब बोलना ज़रूरी है और कब चुप रहना ज़रूरी है। चुप्पी भी चीख हो सकती है और चीख भी चुप्पी में बदल सकती है। तो ये ऐसे सबक हैं जो साहित्य और कलाएं आपको दिखाते हैं। जीवन हमको देखिए एक ही मिला है, इसी में ससरा आंदोलन करना है, इसी में JNU में MPhil का वो भी जो भी करना होता वो करना है, और PhD के विद्वान निर्देशक की रुचियों का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह। ये सब हमको इसी जीवन में करना है। और इसी जीवन में
एक हत्यारी सत्ता और एक आक्रामक धार्मिकता और एक छद्म अध्यात्म, एक आया आध्यात्मिक गुरु, उसने ससरे ने यमुना के कछार पर एक बड़ा भारी उत्सव कर दिया और उसके जो विज्ञापन छपे उसमें उसकी तस्वीर थी। मैंने 1000 से अधिक आयोजन किए हैं और आयोजक के रूप में मैं अपनी तस्वीर छापूं, ऐसी अश्लीलता मैंने कभी नहीं की। लेकिन ये अश्लील अभद्र प्रदर्शन करने वाला एक हेखड़ी का अध्यात्म प्रस्तावित कर रहा है कि ये हम तो इसको, अब मैं निकलता हूं रोज वहां से तो मैंने उसको बनते हुए भी देखा है और अब मैं उसको धीरे धीरे, और उससे विश्व संस्कृति का कौन सी छाप पड़ी, कौन सा प्रभाव पड़ा, ये मैं नहीं जानता। ये सब जो छद्म हमारे समय में है, इन सब छद्मों से पार देख सकने की दृष्टि अब सबसे अधिक युवाओं में ही हो सकती है, क्योंकि उनके पास अभी भी थोड़ी ताजगी बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम धवल केशियों के पास बिल्कुल ही चुक गई है, वरना आप मुझे क्यों बुलाते, पर हमारे पास वक्त कम है। पर हमने न तो उम्मीद करना छोड़ा है और न सपने देखना बंद किया है। और हम ये न भूलें कि आंखें हमें सिर्फ सच्चाई देखने के लिए नहीं, सपने देखने के लिए भी मिली हैं। धन्यवाद।